नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। आज नमो ग्लोबल गार्डन इंदौर में प्रवासी भारतीय और अतिथियों के साथ पौधारोपण करने का सौभाग्य मिला। इस गार्डन में लगाए गए हर एक पौधे पर QR कोड लगाया गया है। यह कोड पौधारोपण करने वाले सभी प्रवासी भारतीयों को भी दिया गया है। इसे स्कैन कर प्रवासी भारतीय अपने पौधे की निरंतर स्थिति जान पाएंगे। पुष्पिता पलवंशतु तर्षपयान्मः मानवता वृक्षदा पर्वतः वृक्षायाति पर्वतः। चा पेड़ पौधे की धरती को समृद्ध और मनुष्य के जीवन को सानद बनाते हैं। हमने प्रवासी भाइयों को पेड़ बंधन से बांध लिया है, जो अटूट बंधन है। नमो ग्लोबल गार्डन हमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की स्मृतियों की सदैव याद दिलाता रहेगा। उनके द्वारा लगाए गए जी, आपने यहाँ पे पौधा लगाया, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चौहान जी के साथ लगाए और ऐसे भी मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि हमारे सीएम, MP के सीएम एनवायरनमेंट के बारे में इतने अवेयर हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के और इंदौर शहर इतना साफ सुथरा है, अमेजिंग। दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। हम बाग में पेड़ लगाने आए और दिल बिल्कुल बाग बाग हो गया। और हम दोबारा इंदौर आएंगे, मैं अपने बच्चों को लेकर आऊँगी यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरा नाम रूपेंद्र नाथ बीखा। मैं ओरिजिनली मॉरिशस से आया हूँ, लेकिन हम सेटल हुए हैं UK में 40 साल से। और उधर मैंने शुरू किया मॉरिशस से UK में। मेरा प्रोफेशन था नर्सिंग प्रोफेशन, हॉस्पिटल में NHS। और अंत में मैं एक केयर मैनेजर सेटिंग में रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर बहुत खुशी हुई कि हम यहाँ आए। हमारे पूर्वज बिहार से हैं, तो हम बिहार भी विज़िट करना चाहते हैं, लेकिन शायद अगले बार विज़िट करेंगे। लेकिन यहाँ आकर हमें बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्नता हुए कि आप सभी लोग, इंदौर के समस्त लोग हमें स्वागत किए हैं। बहुत आराम है यहाँ पर, सुकून है, पीसफुल है। और ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जैसे हमारे मॉरिशस में है वैसे ही है। और यहाँ के लोग बहुत अकोमोडेटिव है, वेरी फ्रेंडली, वेरी फैमिली ओरिएंटेड। और मैं सभी को इंदौर के सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद। Namaste. I am Nicholas Miraj from Trinidad and Tobago, and I'm attending the PBD conference, and it was very unbelievable to be in the same room as Modi ji. You know, he recently lost his mother, and he spoke to us with such charisma and passion, and it really made us, the diaspora, really feel included in the Indian dream and being a leading power in the world. Modi has talked about the importance of the diaspora in allowing India to reach its true status as a world superpower, and it really made us feel included in the Indian dream and in our rich culture. He talked about the Indian blood in our veins, and it really resonated with us in the Caribbean and part of the Know India program, because we received a trip from the Ministry of External Affairs to go to Bangalore, to go to Delhi, and it was very beautiful. In Madhya Pradesh, we went to Mahakaleshwar temple, and the architecture was stunning, unbelievable. It really, you felt a deep connection to the history of the Jyotirlinga there, and it was unbelievable. I love Mr. Modi, and Jai Hind. Namaste, I'm Rupashi. I'm from Mauritius, and I'm here from the New India program, the 63rd batch. And from visiting Delhi to Karnataka, I'm finally here in Madhya Pradesh for the Bharatiya Pravasi Divas. And till now, it has been a really wonderful experience attending all the conferences, seeing all the ministers, seeing ministers from my country as well. Today we had Mrs. Doriau speaking about our country and how Mauritius and India are related. So it's been fun to be here in Madhya Pradesh. The shopping has been nice, the food has been nice, and even the people here. It's really a beautiful city, and I look forward to coming here again. And
I think here, compared to other states I've visited, it's more related to my country, even the weather. So it has been a very familiar experience for me, and even seeing the hospitality of the people. I saw the cultural show yesterday, the dance and the music. It was really vibrant. It's good. Hi, my name is Lavisha Kapoor. I'm from Thailand and Australia. मेरा पहली बार हम MP आए हैं. Hospitality बहुत अच्छी यहाँ मिली है. It is one of the cleanest cities that I've ever been to in the world, and I was very surprised कि इतना potential है MP में. The Prime Minister and the CM has really taken care of us. इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ है. खाना बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं. कल पूरा MP घूमेंगे. So really looking forward to it, and it's definitely a trip I will remember forever. Thank you. बलराम सिंह, मेरा नाम बलराम सिंह है. मैं बॉस्टन अमेरिका से आया हूँ. मध्य प्रदेश कई बार आ चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी ससुराल है गाडरवारा से. हमारे ससुर साहब जो हैं वो प्रोफेसर थे, इसलिए कई बार आ चुका हूँ. इंदौर दूसरी बार आया हूँ, और मध्य प्रदेश को देख के अब इस बार तो एकदम बिल्कुल फोकस लग रहा था ना, सब कुछ एकदम आगे बढ़ रहा है. और हमारा एक यहाँ पे बिजनेस का भी काम चल रहा है. मैं प्रोफेसर तो ऐसे हूँ, लेकिन मैं बिजनेस में भी काम करता हूँ, और CM से कई बार मिल चुका हूँ. 2015 में भी मिला हूँ, 2016 में मिला हूँ, और इस बार भी मेरा अपॉइंटमेंट था, लेकिन उस दिन मैं नहीं आ पाया. फिर से मिलने वाला हूँ, क्योंकि बिजनेस का एक हमारा इंडस्ट्रियल आपका जो एरिया चल रहा है ना इंदौर में, उसमें हमारा कुछ काम है. करीब एजुकेशन का भी काम है और बिजनेस का भी काम है. तो अभी तक एक्सपीरियंस है. So great, because Madhya Pradesh government is ready, is prepared, and it is willing to invite people and help them progress and make so much development along the way for the state and India. नमस्ते इंडिया. मेरा नाम द्यूजा है. मैं मॉरिशस से आई हूँ. मैं यहाँ के IP63 की पार्टिसिपेंट हूँ, and I came here to participate in the Pravasi Bharatiya Divas, as I am originated from India and my great-grandparents came from Bihar and Calcutta to Mauritius. And right now I am standing in Indore, and it is one of the best, most beautiful, clean and loveliest city in India. And I've been to the Mahakaleshwar temple, and there I've been able to witness the real city of God, and it's amazing. And the true hospitality of the people, the kindness of each and every one, it's so unique in this world, and I am so grateful to be here and to experience all of this, and to be able to visit places in India and in Madhya Pradesh. And I think that the Chief Minister said it all, Mr. Modi. He said that we are one world, even if we have different roots across the world, in Mauritius, in India, and wherever part in the world, we are all bonded, we are all one. We are all Indians from heart, and that's it. Thank you very much. Thank you. Okay, my name is Dr. Mrs. Arvinda Grover. I came from Nigeria, Lagos, and I came here to attend this Pravasi Bharatiya Divas conference, and I came alone here, and I really enjoy that there is very tight security, and there is no fear. You can move alone, and the city is very neat and clean, well organized. And here the Shivraj Chauhan, the minister, he's a very polite. And first day I met with him, and he's very polite, and he's a very gentle person, and he's really improved the country very well, and he's trying his best. And I went to so many places, like I went to Rajwada Fort, and I went to Chappan Market, and I really enjoy. Yesterday I really enjoyed that market, and they have really very neat and clean market, and they have organized a cultural program also.
is really very. If anybody can go and they can enjoy, and that is really very good market. And after that, I came here, and everything is well organized. I attended all the programs. Yesterday, I attended Modi program. Everything is well organized, very neat and clean. I really love my Bharat. Vande Mataram. Jai Hind. Namaste, मेरा नाम वीर रुपया. I'm from Mauritius and it's the first time I'm coming to India. I'm here for the New India program, which is the 63rd edition, and it's been a very great experience because this is my first time coming to my motherland, connecting to my roots, and it's been such an enriching and memorable experience that I'm looking forward to come to India again. And we had the great opportunity to come to the Pravasi Bharatiya Divas, which we had the opportunity to meet all the ministers of different countries, to meet our ambassadors, and to see how the connection between Mauritius and India, how India has helped Mauritius in such a various way and helping people to do startup businesses, and it was such a great experience. And okay, thank you. My name is Shekhar. I am from United Arab Emirates as a delegate. From 6th, I have been here, and tomorrow we are leaving. And the most thing I liked is the cleanness of the city and the hospitality of the people. They are very friendly, very good people. That we have experienced from 6th. And today morning I went to DPO. So amazing welcome I received there, and they helped there. Thank you very much for your hospitality and the help extended towards us during our safe stay and here. And of course, the food that has been served here is very amazing food. So thank you very much. मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने आज संयुक्त पत्रकार वार्ता कर बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जिस तरह से प्रदेश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए शिवराज और भाजपा की गुटबाजी जिम्मेदार है। व्यापम घोटाले के बाद एनआरआई के अपमान से दुनिया भर में प्रदेश की बेइज्जती करा रहे हैं मुख्यमंत्री। जब व्यवस्था नहीं थी तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 6000 लोगों को आमंत्रित करने का क्या औचित्य है। सुर्खियों में इंदौर में हो रहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं इन आयोजनों को लेकर कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की प्रगति, विकास और आर्थिक संपन्नता को लेकर, हमारे बेरोजगार साथियों की चिंता को लेकर ऐसी समिट का हमेशा स्वागत करती आई है और आगे भी करेगी। हम ऐसी समिट के विरोधी नहीं हैं, किंतु अभी तक 5 ग्लोबल समिट हुई और 6ठी समिट जिसमें आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने शिरकत की है, कल प्रधानमंत्री जी ने उसमें शिरकत की थी। उनकी मौजूदगी में शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कार्यकर्ता यह भूल गए कि यह समिट वैश्विक स्तर की है। विदेशी मेहमान हमारे यहां आए हैं। भारतीय जनता पार्टी समझी कि यह शिवराज सिंह जी का भंडारा है और जो दुरावस्था सामने आई है उसे लेकर कांग्रेस पार्टी का रक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हमारे 2 विशिष्ट मेहमान आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी और सज्जन वर्मा जी के रूप में यहां मौजूद हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा डॉक्टर गोविंद सिंह जी से कि वे पार्टी का रुख स्पष्ट करें। डॉक्टर गोविंद सिंह जी। विरोध कर रहे आवाज उठाती है, लेकिन विधानसभा में भी आप एक पद नहीं दिखते, गोविंद सिंह जी भी गायब हो जाते हैं। आपको मालूम है, आप मत बोलो, मैं जवाब देता हूं
गोविंद सिंह जी अविश्वास प्रस्ताव रखने के बाद मैं खुद गवाह हूँ, मेरे सामने घर से फोन आया। गोविंद सिंह जी की माता जी की तबीयत बेहद खराब थी, हम सब ने इनसे अनुरोध किए, जाने को तैयार नहीं थे। मैंने डॉक्टर साहब आप चले जाइए, हम लोग बैठे दमदारी से हम संभालेंगे, आप चिंता मत करो। हम लोगों ने रवाना किया। बात यह कि जो व्यक्ति एक डरपोक मुख्यमंत्री 2 दिन 3 दिन विधानसभा चलाता हो, उस विधानसभा में हम क्या कर लेंगे? क्या जनहित के मुद्दे उठा लेंगे? एक पलायनवादी मुख्यमंत्री इस प्रदेश में काम कर। एक बात ये कहना चाहूंगा आपसे, पहला आप मध्य प्रदेश के और देश का अविश्वास प्रस्ताव में क्या करना चाहिए, विपक्ष की ड्यूटी है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से और आपसे भी, क्या मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंने और हमारे पार्टी के सभी साथियों ने लगाए थे, एक का भी जवाब दिया? लच्छेदार भाषण, जबकि जो आरोप लगाया अविश्वास प्रस्ताव से होता है सरकार की क्या खामियां हैं, सरकार ने क्या क्या गलतियां की हैं, सरकार के कौन कौन सा सुधार करना चाहिए, इन सब बातों का उल्लेख विपक्ष ने किया। इसी प्रकार 2013 में जब अजय सिंह जी ने अविश्वास रखा था, मैंने खुद लिखित भ्रष्टाचार पूर्व मंत्री एक महिला मंत्री पर लगाए थे, इसका एक भी जवाब नहीं दिया, जबकि लोक आयुक्त ने उन दोनों प्रकरणों को रजिस्टर्ड करके केस रजिस्टर्ड किया। एक मिनट, तो क्या मुख्यमंत्री अगर जवाब देते तो उनका भ्रष्टाचार प्रदेश की जनता में उजागर हो जाता। वो जरूर बात है जो अविश्वास प्रस्ताव से संबंध नहीं थी, उनमें लच्छेदार भाषण दिए। हम घोषणा करते, मैं तो घोषणा की मशीन हूँ। अरे घोषणा की मशीन हो तो घोषणा सच्चाई करो नहीं, जो हमने मुद्दे उठाए हैं। आप लोगों ने एक ने भी इस बात प्रश्न को लगाया, जो सबने लिख दिया कोई पूरा बड़ा चला के लंबी चौड़ी अविश्वास विपक्ष अविश्वास फ्लॉप। अरे आप फ्लॉप कर दो, रिकॉर्ड तो नहीं करेगा फ्लॉप। हमने जगह जगह पढ़ा अखबारों में अविश्वास प्रस्ताव फ्लॉप हो गया। अरे सम्मानीय हमारे साथी वर्मा जी, पीयूष भाई, मिश्रा जी और हमारे दीप्ति सिंह जी, बिंदु जी और सुरेश जी और उपस्थित आप सब भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, मैं पहले तो मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी के बारे में कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास शिवराज सिंह जी से उठ चुका है। अब धीरे धीरे उनकी कार्यकर्ताओं का, शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विश्वास भी शिवराज सिंह से उठ चुका है, क्योंकि सभी प्रदेश की जनता उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता समझ चुके हैं। अब शिवराज सिंह के सरकार के गिने चुने गुण रह गए, इसलिए पूरी तरह से शिवराज सिंह का अपमान करना, उनकी बेइज्जत करना और अनुशासन की धज्जियां उड़ाना उनके कार्यकर्ताओं का काम हो चुका है। जो आपको इंदौर में एनआई साथियों के जो भाग लेने आए थे, उनको बुलाया था, उनका जो अपमान हुआ है, कार्यकर्ता बैठे हैं विदेश से आ गए लाखों रुपए खर्च करके, हमारे एनआरआई भाई बहने, मंत्री, महापौर, अनेक देशों के प्रधानमंत्री पधारे, उनके रजिस्ट्रेशन हुए और रजिस्ट्रेशन के बाद वो जो आए थे बाहर से, उनको इन्वेस्टर्स मीट समिट में शामिल नहीं होने दिया। बाहर खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कार्यकर्ता
और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे उन्होंने जाके सभी कुर्सियों पर मंच पर कब्जा कर लिया। जिनको बुलाया गया था वे बाहर भटकते रहे। और शर्मनाक बात तो यहाँ तक हुई जब उन्होंने अपने कार्ड दिखाए कि हमें बुलाया है, रजिस्ट्रेशन है, तो जिला प्रशासन के और उनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा आप टीवी लगी है बाहर देखिए, आपके लिए अंदर स्थान नहीं। अब जिन जिन का अपमान हुआ, जिन्होंने कहा उनका पूरा डिटेल्स सज्जन भाई बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहा जहां तक 2117 हेक्टेयर जमीन इनके दी थी, कई लोगों से हम ही हुए, साइन हो गए, उसमें से 10% के अलावा किसी ने निवेश लाने के लिए, काम करने के लिए अपनी स्वीकृत बाद में नहीं दी। हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, बक्सवा हीरा खदान छतरपुर जिले की, उसमें हमारे भारत के ही एक बड़े उद्योगपति ने बात कर ली, एमओयू किया और तय किया क्या कमलनाथ जी ने, हीरा मिले जब मिले, टिम्बर लाइन है, हमें प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए, 3 वर्ष में 60,000 करोड़ रुपए चाहिए। और उन्होंने स्वीकार किया और जाके पहली किस्त बातचीत हुई कि जमा 20 साल का 20,000 करोड़ जमा कर रहे हैं। तब तक माननीय शिवराज सिंह बोलते हम घोषणा पत्र की मशीनें घोषणाबाज आ गए। और उसके बाद उन्होंने बिरला जी की थी, वो कहता उनका तय हुआ तो उन्होंने कह दिया कृपा करो यहाँ लाओ, कमीशन पहले दो, लाइसेंस के दो, जमीन के दो, घर ठुकरा दे, हम चक्कर लगाए, हम आप पे विश्वास नहीं है। और उन्होंने अपना एग्रीमेंट निरस्त करा दिया। अब इससे आगे किन किन देशों के क्या हुआ, इसके डिटेल्स में सज्जन भाई हमारे बैठे हुए ये डिटेल्स बताएंगे। जब 5 इन्वेस्टर मीट फ्लॉप हो गई तो 6ठी की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? ये एक यक्ष प्रश्न आपके हमारे सबके सामने। बिल्कुल, वो डरा हुआ था, हमारा मुख्यमंत्री डरा हुआ था, तुमने हाल भरेगा कि नहीं भरेगा, मैं इतने लोगों को बुला रहा हूँ, आएंगे कि नहीं आएंगे, तो पट्टा सब जगह न्योता दे आया। अब लोगों को तो अपने देश से लगाव था, जिनको अपने देश से लगाव था वो तो आएंगे। ये कल्पना शिवराज जी को नहीं थी तो न्योता बांटा कि हाल भर जाए खचाखच, वो स्थिति हुई। मुकेश देखिए, हम तो कहते हैं हमें गर्व की अनुभूति होती है। एक भारतीय को गर्व की अनुभूति होना चाहिए कि हमारे देश में G20 का इतना बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। मेरा अनुरोध है माननीय नरेंद्र मोदी साहब से कि ठोकर लग गई अब तो ठाकुर कहलाओ। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ उससे सबक ले लो, कम से कम ये गलतियां उस G20 के सम्मेलन में ना हो। हमारी साख वहां बचा लेना, यहाँ की क्षतिपूर्ति वहां कर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल कांग्रेस नेता यासीर हसनात के निवास पर पहुंचे, जहां बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रभारी ने संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जैसा कि हम जानते हैं कि भोपाल में 2 विधानसभा क्षेत्रों से मुस्लिम विधायक कांग्रेस के टिकट पर जीतकर आते हैं और पिछले 65 वर्षों से लगातार एक न एक मुस्लिम विधायक भोपाल में रहा है, जिसमें 1957 से 2022 से आज तक शाकिर अली खान, हमीद कुरैशी, रसूल अहमद सिद्दीकी, हसनात सिद्दीकी, आरिफ अकील हैं। और आज भोपाल में कांग्रेस के 22 पार्षद हैं, जिनमें से 15 माइनॉरिटी में आते हैं। कार्यकर्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आगामी संगठन बदलाव में भी इसी ही अनुपात से भोपाल माइनॉरिटी नेताओं को हिस्सा दिया जाना चाहिए।
सर, आज आपके निवास पर काफ़ी एक अच्छी बड़ी बैठक हुई, कांग्रेस पर चिंतन किया गया, क्या विशेष खास सब्जेक्ट रहे हैं? आज का मौका था हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी जनाब जेपी अग्रवाल साहब भोपाल में थे, तो हमने ये मौका उनसे मांगा कि आप हम सबके बीच में जो उत्तर भोपाल के जितने भी ग्राउंड वर्कर हैं और उत्तर भोपाल के अलावा भी यहाँ पे मध्य के और नरेला के सभी जगह के हमारे साथी दक्षिण पश्चिम से भोपाल मखसूस जो विधानसभाएं हैं जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है या जहाँ पर जीतती है या जीत सकती है, उन सारे इलाकों के लोग यहाँ पर हमारे साथी कांग्रेस के वर्कर्स मौजूद थे और हम लोगों ने सब ने अपनी जो बात उनसे अपने अपने क्षेत्र के बारे में, संगठन में किस तरह काम हमने अभी तक किया और आगे किस तरह किया जा सकता है और हम लोग किस लाइन पे आगे चल के काम करना चाहते हैं, ये हम ने हमारे यंग जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, सभी ने अपने अपने व्यूज़ उनके साथ शेयर किए, अपनी बात उनके सामने रखी और हमने आज उनको यहाँ जो बुलाया था वो मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर पे नहीं। अगर आप जानते हो कि जेपी अग्रवाल साहब जो हैं वो दिल्ली से 4 बार के सांसद रहे हैं और चांदनी चौक जैसे क्षेत्र से सांसद रहे हैं, जो कि बहुत हद तक पुराने भोपाल जैसा ही एक क्षेत्र है जहाँ पर गंगा जमनी तहसीब है। तो हम इस बात को समझते थे कि वो हमारी बात को जानेंगे, यहाँ की सियासत कैसी है इस शहर की, उसको वो बेहतर समझेंगे। तो हमारे परिवार का एक बड़ा जैसे हमारे बीच में आता है, ऐसे हमने उनको बुलाया था और छोटे होने के नाते अपनी सारी बातें, कुछ शिकायतें जो भी थीं वो उन तक रखी, ताकि वो हमारे जो वरिष्ठ मध्य प्रदेश के हमारे नेता हैं उन तक हम सब की बात को पहुंचा सकें। और एक बड़े की तरह ही हमने उनको यहाँ बुलाया था, एक पॉलिटिकल फंक्शन ना करते हुए इसको हमने एक पर्सनल एक गेट टुगेदर के रूप में हमने इस कार्यक्रम को रखा है। और सबसे मिलना जुलना उनका भी हुआ और ये सारे हमारे वर्कर्स उनसे मिलना चाहते थे, बहुत बड़ी हिंदुस्तान की शख्सियत है, तो ये एक कार्यक्रम था हमारा। सर, कैसा अनुभव रहा है भारत जोड़ो यात्रा में? आप स्वयं राहुल गांधी जी के साथ चले हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी के साथ भी चला और इस यात्रा में मुझे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मुझे मध्य प्रदेश का जो यात्रा का कंट्रोल रूम था उसका मुझे अध्यक्ष भी बनाया था, तो उसके नाते भी मैं पहले दिन से ही इस यात्रा से जुड़ा रहा। केरला मुझे बुलाया गया था, मैं केरला इस यात्रा को अटेंड करके आया, ये देखने के लिए कि जब हम मध्य प्रदेश में पहुँचेंगे तो दिग्विजय सिंह जी ने हमें मौका दिया कि हम केरला में उस यात्रा में शामिल हों और वहाँ उस यात्रा को देखें और समझें कि यात्रा में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ताकि जब यात्रा मध्य प्रदेश पहुँचे तो हम वो सारी मिशन 2023 का आगाज़ हो चुका है। और जैसा कि ये बिगुल राहुल गांधी जी ने फूंक दिया है कि मध्य प्रदेश में बम्पर बहुमत से कमलनाथ जी लौट के आएंगे और बेईमानी से और गद्दारी से जो ये सरकार हमसे छीनी गई थी वो हम अब इतने बड़े बहुमत से लेकर आएंगे कि ये कितनी भी गद्दारी कर लें या कितनी भी बेईमानी कर लें, हम इतनी बड़ी मार्जिन से इस बार सरकार में आएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी का जो चेहरा है वो एक बेदाग चेहरा है, उसको लेकर जब कांग्रेस फिर से एक बार मैदान में उतरेगी तो बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होने वाला है। थैंक यू। सर, कांग्रेस ने मिशन 2023 की शुरुआत कर दी है, आज राजधानी में काफ़ी भीड़ भी आपने रविंद्र भवन में देखी, सर कैसा आप देखते हैं आने वाले समय? बंद कर दो। हम किसी भी सरकार से क्या तवक्को करते हैं उस पर सारा दारोमदार होता है। पिछले 18 साल में हमारी सरकार कोई साल सवा साल रही, लेकिन उस 15 महीने में जो कमलनाथ जी जिसमें मुख्यमंत्री रहे उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिसकी लोग उनसे तवक्को करते थे। और आज भी जब हम कांग्रेस का प्रचार करते हैं तो उन बातों का बार बार जिक्र करते हैं और लोग भी उसको याद करते हैं। ज़बरदस्ती धींगा मुश्ती के साथ वो सरकार तोड़ी गई और खरीद फरोख्त किया गया, विधायकों को तोड़ा गया और सरकार बदल दी गई। लेकिन बदलने के बाद लोगों को कुछ मिला नहीं। मध्य प्रदेश के लिए कोई बहुत बड़े फैसले नहीं हुए। किसी भी फैसले का आधार रोज़गार होता है और रोज़गार, नौकरी, व्यापार बढ़े आगे तो सारी चीज़ें ठीक चलती है। लेकिन शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जिसके ऊपर ये सरकार पास हुई हो। हाँ, एक चीज़ में ज़रूर पास हुई कि इनके यहाँ जितना भ्रष्टाचार है उसकी कोई कमी नहीं रही। रोज़ अखबार पढ़ने आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार का खुलासा होता है।
सर जितनी जल्दी मध्य बदल प्रदेश में जाएंगे सर उतना अच्छा रहेगा। लगातार सभी कर्मचारी वर्ग परेशान है, अधिकारी से लेके पहली क्लास से लेके चतुर्थ क्लास तक के। सर क्या बात है, हमेशा और सरकार बोलती है मिलके हितैषी। हितैषी होते तो जो कच्चे थे उनको पक्का करते, ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करते। जो टीचर्स हैं उनकी सर्विस कंडीशन बहुत बुरा हाल है। किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन मालूम कर लें। जो नौजवान को रोज़गार देने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी थी उसमें फेल हो गए इस ऑफिस। इन्होंने आज जो सम्मेलन करा है ये 4 साल पहले क्यों नहीं करा? आज सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, सरकार का पैसा खराब करने के लिए आप लोगों को बुलाकर यहाँ तमाशा कर रहे हैं। पिछले कितने ही सालों में एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आया यहाँ, कौन जवाब देगा इसका? सर युवा चेहरा यासिर हसनात भी काफ़ी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और उत्तर भोपाल का क्षेत्र जो हमारा ये है काफ़ी भारत जोड़ो यात्रा में भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। क्या कहते हैं इनके बारे में? ये कांग्रेस के एक हमारे सिपाही है, एक कार्यकर्ता है और कांग्रेस का ध्यान रखते हैं, कांग्रेस इनका ध्यान रखती है। मैं आपका अदा करता हूँ कि आपने यहाँ बुलाया और अपना मान सम्मान दिया। ये हमारे अलग अलग मोहल्ले हो सकते हैं, अलग अलग शहर हो सकते हैं, लेकिन जज्बा वही लेना। तुम लोग फोटो जैसे मेरी कॉन्स्टेंसी का जिक्र किया चांदनी चौक का, वहाँ जाते हैं सारा मटिया महल, सुषमान देव, बल्ली बाजार, पूरी वाला आगे चले जाएंगे, फराज खाना, कसाबपुरा, ये सारा क्षेत्र तकरीबन 30-33% लोग मेरे यहाँ माइनॉरिटी में रहते हैं और मैं तकरीबन 9 चुनाव मानते हैं। लोगों से बहुत रिश्ते हैं, बहुत। लेकिन मुझे एक बात का ताज्जुब जरूर रहा, एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला ना। वहाँ मैंने बहुत लोगों से पूछा मध्य प्रदेश में कोई आपके ताल्लुकात है, कोई रिश्तेदारी है, तो किसी ने हानि करी। और यहाँ भी कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कहा कि हमारे रिश्ते चांदनी चौक से या वहाँ से मटिया महल से। ये ताज्जुब मुझे भी, और दिल्ली वाले भी यूपी या राजस्थान से उनके रिश्ते ज़्यादा हैं। खैर जो भी है, मुझे आज आकर बहुत अच्छा लगा। ये हमारा माशरा है और इसी माशरे से हम जिंदा रहते हैं। जज्बा होता है एक दूसरे के प्रति, हमारा लगाव है और जब हम बैठते हैं तो उसी चीज़ का कचरा भी करते हैं। मेरी तो आपने जो कुछ कहा, मैं बहुत नया हूँ मध्य प्रदेश में, अभी मुझे 3 महीने भी नहीं हुए बने हुए और उसमें 1 महीना यात्रा की तैयारी में लगा, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, कोशिश कर रहा हूँ समझने की। और जो यहाँ के हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनका कांग्रेस में बहुत बड़ा स्थान है। पहले भी जो रहे, अर्जुन सिंह जी रहे, शुक्ला जी रहे, पीसी सेठी साहब रहे, शंकर दयाल शर्मा रहे और आरिफ मोहम्मद साहब की शायद मध्य प्रदेश के जो हॉकी के प्लेयर थे, नहीं असम शेख खान, हाँ भोपाल के हैं, वो मेरे मिले थे। मैं बल्कि इस बार मिलना था, वो रह गया, और मिल जाते तो मैं लेके आता हूँ उनको पकड़ के। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब जो 2 नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, ये दोनों शीर्ष नेता है कांग्रेस के और हमें इन पे भरोसा करना चाहिए। इन्होंने 50 साल से मध्य प्रदेश चलाया है और लोग, मैंने जो देखा इन दिनों में उनके साथ जाने का, बात करने का मौका मिला, तो जगह के नाम से, जगह से, आदमी के नाम से हर एक को पहचानते हैं और एकदम ये बता देते हैं इस आदमी का कितना बड़ा है। तो मुझे लगता है जो बातें आपने रखी हैं, मैं भी उनसे करूँगा, लेकिन आपको भी उनसे दिल खोलकर बात करनी चाहिए। वो बहुत अच्छे लोग हैं और चीज़ों को और हालात को बहुत अच्छी तरह बेहतर तरीके से समझते हैं, करीब से उनके साथ काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा, तो मैं आशा करता हूँ और मैं हूँ, जब तक रहूँगा मध्य प्रदेश में या जब तक भोपाल में आया करूँगा तो मैं आ जाया करूँगा जब आप बुलाएंगे। आज मैं
थोड़ी तकलीफ में था। एक बार तो मैंने मना ही कर दिया था क्योंकि मेरे से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। मेरी पीठ का बहुत बुरा हाल है, लेकिन मैं टीपचंद जी का बहुत आदर करता हूँ। मेरे इनके तकरीबन 30 साल। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एमपी टूरिज्म पवेलियन में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन गोपियों के 8 देशों के चैप्टर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। इस फ्रांस मेट्रोपोल पेरिस में मॉरिशस, रियूनियम द्वीप, मार्टिनिक, श्रीलंका, गोपियों इंटरनेशनल, मलेशिया और मॉरिशस के साथ किए गए MOU पर प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति और प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने टूरिज्म बोर्ड की ओर से और GOPIO के 8 देशों के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए। प्रमुख सचिव शुक्ला ने कहा कि यह MOU मध्य प्रदेश और पर्यटन क्षेत्र में अधिक सहयोग स्थापित करने और मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से किया गया है। आज हमने API जो कि अमेरिका के जो इंडियन डॉक्टर्स हैं उनका संगठन है, उनके साथ सभी डॉक्टर्स के साथ प्रवासी भारतीय दिवस पर उनके साथ मीटिंग की और एक बहुत प्रसन्नता की बात है कि API और मध्य प्रदेश सरकार अब जो हमारा नॉलेज शेयरिंग मिशन है उसके अंतर्गत एक MOU करने वाला है। जितने इंडियन डॉक्टर्स अमेरिका में हैं वो मध्य प्रदेश सरकार को अब सहयोग करेंगे हमारे मेडिकल एजुकेशन में स्टूडेंट्स को की पढ़ाई के लिए और हमारे हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट के लिए। मैं API को बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। हम मध्य प्रदेश सरकार और API मिलकर अब MOU करके अपने व्यवस्थाओं को सुचारू करेंगे। रैली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही परिवर्तन पदयात्रा के दौरान शाहपुर के कई वार्ड में कांग्रेस कर रही है लोगों से जनसंपर्क। हर गली में मोहल्ले में पहुंचकर कांग्रेस के हर एक छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही है परिवर्तन यात्रा में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं परिवर्तन पदयात्रा के दौरान शाहपुरा नगरवासियों को संबोधित करते हुए समय कांग्रेसी नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कमलेश साहू ने अपने भाषण के दौरान भावुक भरे लहजे में स्थानीय विधायक मंत्री भार्गव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और भावुकता में रोते नजर आ रहे हैं। देखिए पूरी वीडियो, आखिर माजरा क्या है। सबको नमस्कार करता हूं। हम ये यात्रा लेके इसलिए आए, अभी कोई वोट नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, हम वोट मांगने नहीं आए। हम आपके सामने ये बात रखने आए हैं कि आज देश की हालत क्या है, आज प्रदेश की हालत क्या है, आज क्षेत्र की हालत क्या है। आप छोटी छोटी बातों पर विचार करिए। पूरे देश के अंदर जो महंगाई की मार है, आप बाजार में तेल खरीदने जाती हो, मीठो तेल कहाऊ जोन, वो मीठो तेल खरीद वे जात बाजार में 40 रुपया को आऊ तो पहले, अब वो कितने को आऊं लगो 180 रुपया को। हमें 200 रुपया हमारे घर बारे हो मजूरी मिल रही, 200 रुपया 300 रुपया। वो में यदि हम 1 किलो तेल खरीदे तो हम बाल बच्चों को कहां से दाल ले आए, कहां से आटो ले आए, कहां से का कर ले, मसालों का खरीद ले हम। आज मिर्चों के रेट देख ले तो 150-200 रुपया चल रहे। जीरे जोन से हम सब्जी बघारा थे वे देख ले आप, वे 300 रुपया और 320 रुपया किलो चल रहे। आप सब्जी खरीद में चले जा, महंगी चल रही, मजदूरी मिल नहीं रही, बिड़ी बनती पहले बिड़ी बंद हो गई। नेताओं ने इतनी दलाली करी कि बिड़ी सेठ बारे अपनी दुकानें उठा उठा के भाग गए। आज बिड़ी के सट्टा बंद हो गए, बिड़ी नहीं बन पा रही। जे नौजवान खड़े आपके ही मोहल्ला के, इस मोहल्ले में जितने लोग हैं, जे नौजवान खड़े हैं, कोनो कंची गोटा खेल रहा हो, कोनो मोबाइल चला रहा हो, क्या करें? कोई काम नहीं है, मजदूरी नहीं है। जय स्थिति जय। आज हमें आप तौलिया खरीद में जाओ, जो 25 रुपया की तौलिया होती है 75 की आऊं लगी। आप कछू खरीद में चले जा, जूता चप्पल से लेके माचिस से लेके, माचिस की डिबिया तो भाई है रुपया एक ही है, मनो माचिस की काली जो 50 निकल 315 निकल रही। एक दिन में 2 मास से खराब हो रही घरों में, 2 रुपया को खर्चा होगा। बहुत छोटी बात कर रहे हैं हम, बहुत छोटी बात, बड़ी बात की बात नहीं कर रहे। सोचो आप, माचिस भरी आउती पहले, अबे आप खोलियो माचिस को पड़ा,
इतनी सी काली कड़ा तो मैं 1 रुपया वही तुम सोच रहे 1 ही रुपया की आ रही मनो काली तो आधी बची दद्दा। सो जो पहले माचिस एक माचिस 3 दिन चलती, आज 3 मास से 1 दिन नहीं चल रही। ये षड्यंत्र है व्यापारिक लोगों का, और ये व्यापारी लोगों के लाने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना बढ़ा दो कि उनने महंगाई बढ़ा दी। अमीर आदमी अमीर हो जा रहा हो, बड़ो आदमी बड़ो हो जा रहा हो, और गरीब आदमी गरीब हो जा रहा हो। आपके ही मोहल्ला में देख ले, चुनाव है, लोकतंत्र की सबकी व्यवस्था है, लोकतंत्र ने संविधान ने देश में आपको वोट देने को अधिकार दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको फर्जी वोटर होती, इनकी रक्षा कौन करे? आपको पोलिंग बूथ रखना होगा, आपको पोलिंग बूथों की सुरक्षा करना पड़ेगी। मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, जीतता कोई है और जीता किसी और को दिया जाता है। आप सब लोग जानते हैं, चाहे बहुत बार सबका चुनाव, चाहे सरपंची का चुनाव, सरपंची में आपने देखा होगा कई ऐसे सरपंच हैं जिनको आपने जिताया, लेकिन उनको गोपाल भार्गव ने हरा दिया। नगर पालिका में पार्षदों को आपने जिताया और इन्हें हरा दिया। ये खेल पिछले 40 सालों से चल रहा है। कब तोड़ोगे आप ये? कब ये जंजीरें तोड़ोगे आप गुलामी? मैं आपसे निवेदन करने आया, पोलिंग बूथ की रक्षा आपको करना पड़ेगी। यदि आज आप पोलिंग बूथ नहीं रखा पाए तो कल आपका घर लूट के ले जाएंगे ये गुंडे। आपको अपने घर की रक्षा आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको पोलिंग बूथ पर खड़े होना पड़ेगा। चुनाव कोई भी लड़े, कोई रक्तबीज नहीं, कमलेश साहू रक्तबीज नहीं है कि एक खून का बूंदा टपका दे सोचे कमलेश साहू बन जाए और वो चिल्लाने लगे। आपको बनना पड़ेगा, अपने अंदर वो ताकत पैदा करना पड़ेगी। कोई फर्जी मतदान हमारे पोलिंग बूथ पर नहीं होगा, कोई फर्जी मतदान हमारे पोलिंग बूथ पर नहीं होगा। कोई गुंडा यदि हमारी पोलिंग बूथ लूटने आएगा तो गुंडों का इलाज, मैंने पहले कहा, गुंडों का इलाज मुंडा है। देहातों में कहते ना कि जूता हो मुंडा कहीं जा मुंडा उठाइए वो मुंडा आपको उतारने पर है चुनाव के दिन। गुंडा यदि कोई गुंडा भारतीय जनता पार्टी का गुंडा आपके पोलिंग बूथ पर यदि बूथ लूटने आता है, आपके माताओं की बहनों की आपकी वोट लूटने आता है, तो उसको आप जूते से पीटिए, जूते से मारिए और उससे कहिए कि भाग यहाँ से, गाँव से खदेड़ के भगाइए। ये आपका अधिकार है। वोट उनके वोट की नहीं है, वोट बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया। प्रार्थना करता हूँ, उस दिन भी कहा हम लोग तो पागल हैं, हम चिल्ला रहे हैं। हमने अभी कहा कि तरुण सागर जी कहते थे कोई जागे ना जागे उसका मुकद्दर, मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहे। हम चिल्लाएंगे, हम जगाएंगे। ये सागर हम लोगों ने वोटें डाली थी, लेकिन अभी चुनाव नहीं है, ये लोग क्यों घूम रहे हैं? कांग्रेस का झंडा लिए हैं। सच्चाई ये है, कांग्रेस का झंडा तो हम एक ही लिए हैं। हमारा सबसे ऊंचा झंडा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा है। इस तिरंगे झंडे को सलाम करते हुए, इस तिरंगे झंडे को प्रणाम करते हुए, इस तिरंगे झंडे की आन बान और शान के लिए, ये हमारे राष्ट्र का ध्वज है, देश का झंडा है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो इस झंडे के सामने नीचे बैठकर कोई बात करता है। इस झंडे का सम्मान है। आज प्यारे साथियों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप सभी इस देश के ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी है, देश के तिरंगे झंडे के लिए लड़ाई लड़ी है। यह तिरंगा ध्वज आपके दरवाजे पर इसलिए लेके हम लोग आ रहे हैं कि इस तिरंगे की शान, देश की आन बान शान बचाने के लिए आपको हर हाल में इस देश के अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह कहते हैं कि हम 20 साल से हैं, बच्चे बच्चियों के मामा हैं। पूरा प्रदेश खा गए। इतना भ्रष्टाचार जितना शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रदेश के अंदर किया है, उतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं होगा। मध्य प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उतना भ्रष्टाचार पूरे देश में कहीं नहीं होगा।
रैली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ उतना भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम रैली विधानसभा क्षेत्र में खड़े, रैली विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए निकाले जा रहे हैं, लेकिन उनमें घर किसके भर रहे हैं? उनमें गोपाल भार्गव जी के दलालों के घर भर रहे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के दलालों के घर भर रहे हैं। आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा। अभी आप जाके पता कर लो, यदि कुटीरें निकली हैं, कुटीरें किन किन की निकली हैं, यदि 4 कुटीरें इनकी निकली हैं तो राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा आपकी जागरण की यात्रा है, आपको जगाने की यात्रा है कि आप इन बातों को समझिए। आपको छोटा सा लोभ दे दिया जाता है, आपको लालच, इनने बड़ी बड़ी बातें करी और उसके बाद आपको अभी एक लेकिन गोद ले लो, आज लो दिखाने है नहीं यहाँ कैसे गोद ले लो। प्यारे साथियों, ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है, करूं वो करते कुछ है। इसलिए आपसे कहने आया हूं इन बच्चों के भविष्य के लिए। आज साहेबपुर के यहाँ आप अपने यहाँ की भी स्कूल की व्यवस्था देख लो। मूलभूत चीज क्या होती है? मूलभूत चीज पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो हमें सागर न जाना पड़े, साहेबपुर में इलाज हो जाए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इलाज कहां से हो जाए? सड़कें खे हो, लाइटें लगवा दें 2 करोड़ की, जेल में लाते थे स्टेशन के थे, वो दिखाते हैं आप सबको। अरे कई भैया ने लाइटें लगवा दें 2 करोड़ की लग गई, पता करो। ये भ्रष्टाचार में सब टूट गई, पहली बरसात में बह गई वे झिलमिल लाइटें। ये झिलमिल लाइटों के आड़ में 2 करोड़ रुपए उनके दलालों ने खा लिए और निकाल लिए। यार ये उद्योग नहीं लगवाए, यहाँ उद्योग नहीं लगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जे स्टेडियम बनो, अबे मान गड़ाओ देते एक स्टेडियम बनो 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ को वो में से कितने खिलाड़ी ये नहीं कर रहे, वो में गई चल रही, सुगरियां फिर रही, भैंसे यहाँ फिर रही स्टेडियम में। कहा हो जे यदि वो 1 करोड़ रुपया के जो ये स्टेडियम बनवाए, 1 करोड़ के 15 स्टेडियम रैली में 15 करोड़ को एक कोनो फैक्ट्री लगा देते तो जो नौजवान आदमी फिर रहे, जो मोबाइल में कान की डोरी पेड़ फिर रहे, जो इन सब के लाने रोजगार मिल जाता, 8 घंटा की ड्यूटी करते और 2 पैसा घर से घरे कमा के ले आते कि नहीं ले आते। तो रोजगार मेन हमारी मूल आवश्यकता होती है। पेट में रोटी चाहिए, इसके लिए हमें 2 हाथों के लिए काम चाहिए, रोजगार चाहिए। ये खड़े दादा ये नौकरी में हटे, आज उनको जीवन सुरक्षित है, उनके बच्चों को जीवन सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में थे, पढ़ लिख के उनमें सरकारी नौकरी। हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे, नौकरी मिले कहां से? और पढ़ गए तो नौकरी नहीं मिल रही, जैसे तैसे मार कूट के को पढ़ो जा रहा हो तो वह नौकरी नहीं है। पहली चीज तो स्कूलों की व्यवस्था ढंग की नहीं है, तो पढ़े कहां से बच्चा? तमाशा मचा दिया। मैं आप लोग जेसी नगर के प्रसिद्ध राजा खोए हनुमान मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने दान पेटी को तोड़कर दान में आए रुपए ले उड़े। सुबह जब पुजारी मंदिर में आए तो उन्होंने दान पेटी टूटी हुई मिली तो उन्होंने तुरंत ही कमेटी के सदस्यों को दी और कमेटी ने सूचना पुलिस को दी। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को दान पेटी खोली जाती है। चोरों ने सोमवार मंगलवार दरमियान रात को भारी भरकम पेटी के 3 ताले तोड़कर चोरी कर ली। दान पेटी में से 3000 का दान ले जाने का अनुमान है, क्योंकि हर हफ्ते 2500 से 3000 का दान प्राप्त होता है। वहीं सूचना मिलने पर जैसी नगर पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई राम लखन पायक ने बताया कि वे बरामदे में जमीन में गड़ी दान पेटी किसी भारी भरकम सब्बल जैसी वस्तुओं से तोड़ा गया। अभी एक्चुअली क्या है, अपन को सूचना मिली थी, अभी रिपोर्ट तो नहीं हुई है, सूचना मिली थी कहीं से, तो मैं तत्काल मौके पे आया तो मंदिर को देखा है, तो पुजारी जी से संपर्क किया तो जो बाहर मंदिर के बरामदे में जो दान पेटी गड़ी है ज़मीन में, उसके 3 लोग लगे हैं, 2 अंदर वाले 1 बाहर से। वो किसी भारी वस्तु से सब्बल टाइप के, ऐसा अनुमान है कि इससे तोड़ के उसको लॉक को उसमें से राशि निकाली गई है और 1 हफ्ते का इसमें कलेक्शन रहता है और अनुमानित 2500 से 3000 रुपया पिछले हफ्ता में आया था, तो संभवतः इतना तो मान ही के चले आप। तो यही है। बाकी पुजारी से कहा कि अंदर देख लो कोई वस्तु और ना गई हो, लेकिन अंदर तो लॉक लगे थे
जी। मकर संक्रांति के अवसर पर ब्लॉक स्तरीय 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ और विशाल देवी जागरण और भंडारे का आयोजन के साथ कार्यक्रम का भव्यतापूर्ण समापन हुआ। बीडीए कॉलोनी अवधपुरी में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गोविंदपुरा विधानसभा की विधायक श्रीमती कृष्णा गौर के नेतृत्व में ब्लॉक स्तरीय अखंड दुर्गा चालीसा पाठ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान समाज के निर्माण करते हुए धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा व समाज की सेवा के लिए लोगों को रैली के माध्यम से प्रेरित करने का उद्देश्य था। कार्यक्रम के आयोजक अतुल कुमार संजय ने बताया कि बीडीए कॉलोनी 3 सेक्टर मां भवानी मंदिर प्रांगण में यह कार्यक्रम किया गया। आयोजन करने हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन एकमात्र ऐसा संगठन, हम समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त कराने के लिए, क्योंकि नशा ही नाश का कारण है। आज कोई सी भी समस्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे हत्या हो, कोई सा भी जो अपराध हो रहा है वो नशे के कारण हो रहा है। तो हम लोगों ने नशा को एक जड़ मानकर कि नशा मुक्त समाज करेंगे तभी समाज धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और समाज सेवा के लिए आगे बढ़ेगा। जब तक समाज नशा और मांसाहार से मुक्त नहीं होता है तब तक वह अपने मानवीय जो उसके विचार है वह जागृत नहीं हो सकते, उसके कर्तव्य क्या है वो नहीं समझ सकता। इसलिए हम लोग नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान समाज का निर्माण करते हुए धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का प्रदेश स्तर ही नहीं, पूरे भारत स्तर और भारत से अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेपाल जैसे देशों में भी हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन सक्रिय है और इस टारगेट के माँ के दिव्य क्रमों को करा रहा है। यहाँ पर जो ये क्रम है ये ब्लॉक स्तरीय आयोजन रखा गया है, जिसमें ब्लॉक के समस्त लोग हैं ही, साथ में हमारे प्रदेश के जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं वह भी उपस्थित हुए। सर नाम बताइए। अतुल कुमार। ये कार्यक्रम मकर संक्रांति पे माँ भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा भोपाल द्वारा विगत 10 वर्षों से इसी बीडीए कॉलोनी में कराया जा रहा है। इस पे मानव भगवती संगठन शाखा हमारा पूरा अच्छा सहयोग से और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ पर आते हैं, बढ़िया कार्यक्रम करते हैं और नशा मुक्ति और स्वामी जी के निर्देश अनुसार नशा मुक्ति रैली, अनेकों कार्यक्रम इन्हीं के माध्यम पूरी व्यवस्था के साथ ये करते हैं। मुझे गर्व होता है कि जो ये नशा मुक्ति और ये सब काम हमारे साथ आके हमारे बीच रहकर काम कराते हैं। मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर काफी महिलाएं इस पे महिलाएं बढ़ चढ़ के महिलाएं तो लेती हैं, साथ ही बच्चे छोटे छोटे वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं इस कार्यक्रम में। नशा मुक्ति, मांसाहारी, इसका संदेश देना चाह रहे हैं कि सब छोड़े मांस मदिरा, अपने घर परिवार का पालन पोषण करें। जो पैसे हम उस पर खर्च करते हैं वो हम अपने परिवार में करें। आयोजन 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ स्तरीय, इसका मुख्य उद्देश्य जो है समाज को नशा मुक्त करना और मांसाहार मुक्त करना। सागर की मकरोनिया थाना पुलिस ने 3 दिन पहले हुई लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले शंकरगढ़ निवासी 4 आरोपियों को दबोच लिया है। उनके पास से लूट की गई ऑल्टो कार और मोबाइल को बरामद किया है। बता दें कि शनिवार की रात खुरई कोट में बाबू हरिओम दुबे के साथ मकरोनिया रजा खेड़ी कलारी के पास नीरज, नितिन, संदीप, रितेश ने कार को रोका। कार में पत्थर फेंककर शीशे तोड़े और फिर बाव के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, उसके पास से 15,000 कीमत का मोबाइल और कार को लूट कर फरार हो गए। फरियादी बाबू ने मकरोनिया थाने में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल ही सक्रिय होकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और घटना के कुछ घंटे बाद ही आरोपी को पकड़ लिया था। एक हरिओम दुबे करके हैं पिताजी बसंत दुबे, ये खुरई कोट में बाबू है। ये शनिवार की रात्रि की घटना है। वो जब यहाँ सागर आए थे रात में, तो यहाँ रजाखेड़ी के पास उन्होंने अपनी फ्रेंड को उतारा। तो उसके बाद वो आगे बढ़े तो कलारी के पास कुछ 4 वक्त थे। उन्होंने पहले तो कार में पत्थर मारा, कार का शीशा में लगा। ये उतर के आए तो फिर उन्होंने पीछे से उनके साथ मारपीट करी और इनसे एक मोबाइल, 15,000 नगद और कार लूट के चली। ये घटना थी। फरियादी ने जब रिपोर्ट करी तो तत्काल कार्रवाई करी और आज ये 4 आरोपी पकड़े गए। सर सागर जिले में देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए, इसके बाद लगातार वारदातें हो रही हैं, तो क्या कहना चाहिए? ये जो घटना हुई है
ये कलारी के पास एक अंदर गली में हुई थी। मैं खुद उस दिन रात्रि गश्त में था, तो मैंने वो खुद कार देखी थी। वहाँ पे कोई कैमरा नहीं जिस स्थान पे घटना। सर वारदात होने के बाद आरोपी को कितनी देर में पकड़ लिया गया था? ये रात की घटना है और सवेरे हमको आरोपी मिल गए। कितने आरोपी थे? 4 आरोपी। थैंक यू सर। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।